اور یسوع مسیح کے نام کی جے جے جے۔ بے شک خداوند رب الافواج کا شکر کرتے ہیں کہ آج میں اس چرچ میں ہوں خداوند کی کلام کی منادی کرنے کے لیے۔ کراچی سے میں یہاں پر آیا اور اس بات کے لیے میں پوری چرچ کی ٹیم، تمام پاسبان، تمام ایلڈر صاحبان اور جتنے بھی کوائر اور یوتھ کے لوگ ہیں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے آج کے دن خداوند کی آواز کو سننے اور سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی کے اندر خدا کا روح القدس کام نہیں کرے گا آپ کام نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھے کہ خدا کے روح کے بغیر خدمت کچھ بھی نہیں۔ روح القدس ہمیں ہر لمحہ سکھاتا اور چلاتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ نیو ویژن پینٹیکاسٹل چرچ منسٹری 2008 سے ہم اس منسٹری کو چلا رہے ہیں اور پورا ہفتہ ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ بہت سارے کراچی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں، جو چیئرمین صاحب ہیں، پاسٹر احمد ایم لال صاحب، اور میں ان کے ساتھ عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہوں اور سنڈے اسکول منسٹری سے ہم اس خدمت کو کرتے آئے ہیں۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی کے اندر ہر ہفتے ہماری ٹیمز خدا کی منادی کے لیے دیگر علاقوں میں جاتی ہیں۔ بدھ، پیر، منگل، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ہر روز ہماری 2 سے 3 ٹیمیں ہوتی ہیں جو دیگر علاقوں میں جا کر خدا کی منادی کرتی ہیں۔ اور میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کی کہ خدا نے یہ موقع بخشا۔ میرا تعلق نیو ویژن پینٹیکاسٹل چرچ سے جیسے آپ کو بتایا گیا، اور میری رہائش جامعہ کراچی یونیورسٹی ایوب گوٹ میں ہے۔ وہاں پر لکھا نہیں تو میں پھر بھی آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ جامعہ کراچی یونیورسٹی جو بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پر ہی ہماری رہائش ہے، اور وہاں پر ہماری میرے ساتھ پاسبان، مبشران، ایلڈر صاحبان، بہت ساری ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ خدمت کری۔ سو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر بلکہ ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ شخص، وہ بھائی، وہ بیٹی، وہ بیٹا اس تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں لینا چاہتا۔ جیسے پاس صاحب بتا رہے تھے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی چرچ میں آئے یا وقت پر، یا کسی کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت کو وہ کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ اس نصیحت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لینا چاہتا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس سے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ ہاللویا! خوش نصیب ہے وہ آدمی جس سے خدا کیا کرتا ہے جی؟ تنبیہ کرتا ہے۔ ارے انسان کی تنبیہ تو ہمیں محض صرف تھوڑے وقت کی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ خاکی ہے، خاک میں چلا جاتا ہے۔ لیکن کلام کی تنبیہ، کلام کی جو تربیت ہے وہ ہمیں آسمان پر بھی خدا کے تخت کے قریب لے جاتی ہے۔ ہاللویا! اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس سے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ آج کسی نے کہا نا کہ تم برے کام چھاڑ دے، اے نہ کرو نہ کر، آندے نے جی پادریاں دا کام ہے، وڈیریاں دا کام ہے، بابے دا دماغ خراب ہے، اما تے ساڈے پیچھے پئی ہے۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہماری اولاد کو تربیت کی ضرورت ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو تنبیہ کی ضرورت ہے۔
बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए अय्यूब की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 17 से 20 आयत। कोई भी बेटी बेटा बुलंद आवाज में पढ़िएगा। आज हम सीखेंगे खुश नसीब है वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है। जिसे खुदा क्या करता है? हाँ मदे तो बाबा तंबी करे तो आंदे ने बाबा मैनू जहर लगदा जी, ये आंदा जांदा ही मैनू बस इको ही गल कहंदे। हाँ जी, कलामे खुदा में से हम देखेंगे अय्यूब की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 17 और 20 आयत। कलामे खुदा में से 2 आयतों को देखा मेरे साथ। आज शाम हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है अय्यूब 5 बाब और उसकी 17 आयत में, देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुश किस्मत है। इसलिए कादिर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरूह करता और पट्टी बांधता है। आमीन। खुदा के कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम आगे चलेंगे। इसके बाद बेटा बैठ जाइए, माइक ले लीजिए, या वैसे आपकी आवाज अच्छी है, बुलंद आवाज में आपने पढ़ा। यहाँ पर कलामे खुदा में से हम देखते हैं अय्यूब की किताब का मुसन्नफ मूसा बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है और इस बात को हम देखते हैं कलामे खुदा में से। ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। देखो लिखा है, देख वो आदमी जिससे खुदा तंबी करता है क्या है? खुश नसीब है। देखो वो आदमी जिससे खुदा तंबी करता है। आज खुदा किसी से बात करे तो कितनी खुशी की बात है मेरे अजीजों। हम कहते हैं जी मेरे ना खुदा ने गल की थी, खुदा ने मेरे ना कलाम किया, खुदा मुझसे बात करता है, खुदा मुझसे गुफ्तगू करता है। लेकिन मेरे अजीजों आज लोगों ने झूठ पर बुनियाद रखी है, झूठ पर खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है खुश नसीब है वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से ही पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से क्यों पहचाना जाता है? जिसे खुदा तंबी करता है उस दरख्त के फल बाइश से बरकत होते हैं, उस दरख्त की कलीसिया बाइश से बरकत है, उस दरख्त का घराना बाइश से बरकत है, उस दरख्त पर कभी कीड़ा नहीं लग सकता, हवा के परिंदे घोंसला नहीं बना सकते। और परिंदे कहां पर घोंसला बनाते हैं? जब घोंसला बनता है तो उस घोंसले के अंदर गंदगी होती है। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों लिखा है कि देखो वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा मुझे तंबी कर रहा है, पास्टर साहब ये ना कर। खुदा का रूह हमें सिखाता है। पहले बाप का दौर आया, फिर वो बेटे के रूप में आया, अब वो रूह कुदस के रूप में है। हालेलुया। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ रूह कुदस का दौर है। रूह कुदस को ले। जब आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस है तो आप रूह कुदस के वसीला से लोगों के लिए बरकत चाहेंगे। और मेरे अजीजों वो रूह कुदस ही पाएंगे। अगर आपके पास रूह कुदस है तो वो रूह कुदस ही पाएंगे। अगर अच्छा स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर पाक रूह है, अच्छा मददगार आपकी जिंदगी में है तो वो मददगार को हासिल करेगा। आप उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, आप उसे अच्छी नसीहत देंगे। यहाँ पर क्या लिखा जी बेटा पढ़िएगा। हाँ जी 17 आयत को बैठ के पढ़, कोई बात नहीं। हाँ जी। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुश किस्मत है। इसलिए कादिर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान। इसलिए कादिर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरूह
हाँ जी, कादरी मुतलक की तदबीर को हकीर ना जा, और किसी भी नेमत पर अमोश ना कर, और किसी भी काम नू हकीर ना जा, बल्कि हर एक बात तेरे लिए बाइस बरकत है, उसे रद्द ना कर। बल्कि बाइबल मुकद्दस में यशुआ की किताब में क्या लिखा है कि उसे अपने गले का तोक बनाकर अपने क्या कर कैंठा बना के, पंजाबी च की करदियां ने औरतां, पंजाबी च गल करन आ कि कैंठा बना के अपने गले का तोक बना लेंदी। इसे तरह खुदा दी तालीम नू, खुदा दी नसीहत नू अपने गले ते लाल लगा लो, ताकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि तू क्या कर, इसलिए कादिम मुद्दे की तदबीर को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वही मजरू करता और पट्टी बांधता है। खुदा जिसे तंबी करता है उसे मजरू करता है और फिर वही उसे पट्टी बांधता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावन हाथ साडे जख्म छड़ नहीं देंदा, गलन सड़न लई नहीं छड़दा, साडे जख्मां नू वो की करदा है, वो अपने खून से, वो अपने गोश्त से, वो अपने रूह कुद्दस की कुदरत से वो भर देता है, ताकि वो बदबूदार सड़न ना हो, बल्कि बाइस से बरकत बदन हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर आगे क्या लिखा जी? वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं, क्योंकि क्या लिखा है, वो तुझे वो 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। भाई नदीम किन्नियां मुसीबतां तो, पर असी की करने और गल नू मनिए ते सही, उसके कलाम पर तवज्जो तो करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कलाम की तरफ निगाह करेगा वो भलाई देखेगा। असी कलाम वाल तवज्जो नहीं करते। पादरी साहब साडे लिए दुआ करो, राती मैनू सप नजर आया है, पादरी साहब राती मैनू चीजा नजर आ गई ने, पादरी साहब राती मैनू बढ़ावा नजर आ गया। यस्सु क्यों नहीं नजर आ गया? क्योंकि आप खुदा की तरबियत को रद्द कर देते हैं। खुदा जो तरबियत आपकी कर रहा है, जो खुदा आपको तंबीह कर रहा है, आप उसे रद्द कर देते हैं। तो इसीलिए आप इन गैर माबूदों के हाथों में जकड़े जाते हैं। लेकिन वही कलाम खुदा में लिखा है फिर छुड़ाने की कुदरत और ताकत रखता है। असी खुदा नू भुल जाने, लेकिन खुदा सानू नहीं भुलता। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर लिखा है वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि साथ भी कोई आफत तुझसे क्या ना होगी, छूने ना पाएगी। कोई आफत नहीं छू सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि कलामे खुदा में लिखा है, देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। वो आदमी खुशकिस्मत है कि जिसे खुदा तंबीह करता है, वो खुशी के साथ खुदावन की हुजूरी में आए। कितनी अच्छी बात है जिसे खुदा तंबीह कर रहा है, कितनी अच्छी बात है जिसे खुदा कलाम कर रहा है। खुदा ने इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम, अपने रिश्तेदारों नातेदारों और क्या कर, छोड़ और मेरे पीछे आ। ये अज दा साडे वर्गा हुंदा हुंदा किथे पिया पांच तेरे पीछे आइए है ना। ते कोई जे असी कोई साडे कोल होना नहीं, असी ना ते सिग्नल होने ने, ना ते नेट चलना, ना कुछ चलना, असी तेरे पीछे की लैन आइए। लेकिन राब्ता खुदा के साथ है। इब्राहिम खुदा को रूबरू देख रहा है, इब्राहिम खुदा के साथ रूबरू है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी तंबीह की और देखे वो एक नहीं बल्कि लिखा है कलाम खुदा में लिखा है वो कौमों का बाप बन गया, भाई से बरकत हो गया। आज हमारे घर से आटा दाना, बिजली, हर चीज क्यों खत्म हो जाती है? रुपया पैसा क्यों खत्म हो जाता है? बीमारियां क्यों आ जाती है? क्योंकि खुदा की तरबियत को हम भूल चुके हैं। बाइबल मुकद्दस में खुरूज की किताब में कितनी खूबसूरत बात लिखी है, असी हर इतवार आने हैं, इको गल पढ़ने हैं, लिखे है कि तू उसकी बात कर तब तो वो तेरी रोटी पानी पर क्या देगा, तेरे विचों बीमारी खत्म कर देगा। असी उदों आंडे होंगे जो पादरी आखिरी हवाले करवान दिया होंदा या आखिरी चंदे का गीत होने होंदा।
ਤੇ बरकत भी तो उन्हीं कोई ऐसा लेके जानी है ना। लिखा कि खुदा की हजूरी में आ, वो तुझे तंबी करता है। आइए मेरे साथ जरा देखिए अस्तिशना 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जी बेटा पढ़िएगा, अस्तिशना 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। जी हाँ जी, 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है। हाँ जी 8 बाब 5 आयत में। जी जी, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जी पढ़िएगा जरा। करके तुम उनसे ये सलूक करना कि उन और बाइबल मुकद्दस में से जब 8 बाब की 5वीं आयत मैंने कहा है जी, यहाँ पर क्या लिखा है, और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावन तेरा खुदा तुझे क्या करता है, तंबी करता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਘਾਰਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੱਭੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ, खुदा दी हुजूरी च जा, दुआइया मीटिंग च जा। लेकिन बेटे क्या करते, उससे रद्द करते हैं, बेटियां रद्द कर देती है। लेकिन कलाम खुदा में क्या लिखा है, जी बेटा पढ़िए जरा। यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, और तू अपने दिल में ख्याल रख, तू अपने दिल में ख्याल रख, जिसे तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावन तेरा खुदा तुझे क्या करता है, तंबी करता है। अरे हम खाकी होकर अपने बेटों के लिए बेटियों के लिए अच्छे बातें अच्छे मंसूबे रखते हैं, लेकिन क्या खुदा जो हमारा खुदावन रब्बुल फौज, हमारा हावर चडावल और खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा है, क्या वो हमारे लिए अच्छे मंसूबे ना रखेगा? वो अच्छे मंसूबे रखता है। आप उससे मांग कर देखिए, लिखा है कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे खुदावन तेरा खुदा तुझे क्या करता है। आगे की लिखा जी, सो तू खुदावंद अपने खुदा की राह पर चलना और उसका असी खौफ ही नहीं मानते और रामा ते नहीं चलते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, तो हम कैसे बरकत पाएंगे। लिखा है मुबारक है वो जिसे खुदा तंबी करता है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा की तंबी पर चलता है, वो मुबारक है, वो बाइस से बरकत है। वो अंदर जाते भी बाइस से बरकत, बाहर जाते भी बाइस से बरकत, उनकी औलाद भी बाइस से बरकत, उनका खानदान भी बाइस से बरकत। लेकिन जब अस्तिशा की किताब लिखेंगे, एक ऐसी कौम भी है जो तेरी बेटियों को, तेरे बेटों को तेरी आंखों के सामने ले जाएगी, पर तू तरसता रहेगा। क्यों? वजह की है कि खुदा दी तंबी नूं असां रद्द कीता है, खुदा की तरबियत को हमने रद्द कर दिया है। लिखा है कि तू तरसता रहेगा। वजह क्या है कि हम खुदा की तरबियत को रद्द कर देते हैं। आज हम खुदा की हुजूरी में अपनी औलाद को आने नहीं देते। खुदा की हुजूरी में तेरा हुण संडे स्कूल लग गया, तेरी मीटिंग का टाइम हो गया, अब भांडे किन्ने धोने ने, फलाना काम किन्ने करना है। अवारगी लई साडियां बच्चियां बच्चे जान रहे ने, तबाही ते बर्बादी होण रही है। लेकिन गैर लोकां दे विच साडियां बच्चियां ब्याहियां जान रहीआं ने, कदी असां उन्हां दे वेखे ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਦਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ औलाद ਨੂੰ ਤੰਬੀ नहीं करते पए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तू अपनी औलाद को तंबी करे, और इंसान की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बेटे की राह पर ऐसी तंबी करो वो बूढ़ा होने तक उसे ना, उससे मुल्क ना हो, उसे उस बात से मुकरे ना। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 14 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कभी माँ बाप ने कहा कि मैं खून पसीने की कमाई
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਏ کہ ਤੁਹਾਨੂੰ کلام کیوں نہیں آ رہا بائبل مقدس کیوں نہیں پڑھ سکتے خدا کا کلام آپ کیوں نہیں ریڈنگ کرتے کدی اسی ایرے تے غور کیتا ہے کہ اسی اپنے بچے نو ریلیجن کلاس کے لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے آپ اپنی اولاد کو تنبیہ کرنا شروع کر دیں 50,000 کا کورس ہے جی نرسنگ کورس کرانا 80,000 کا 1.5 لاکھ کا کورس ہے کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں اسے بائبل کورس کرواؤں خدا کا کلام سکھواؤں خدا کی پرستش کرنے والی ہو رب الافواج کی حضوری میں جھکنے والی ہو رات کے پیروں میں یہ دعا کرے خدا اس سے بات کرے کتنی خوبصورت بات ملتی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر کیا کرنا عمل کرنا کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لے جائے اور میرے عزیزوں دیکھو اسیتے پانی تو ترسنے لیڈ تو ترسنے ہر چیز تو ترسن دے لیکن دیکھو ایک کوکے پیچھے پین پر ایک دوجہ نم قتل کرن دے نے اچھی تربیت ہوگی تو لکھا ہے بائبل مقدس میں سونے دیا سڑکہ تے ٹرو گے ایتھے ایک پا دودھ تو اسی لڑنے لکھا ہوتے دودھ دیا ندیاں پینٹ گیا ہون گیا وجہ کیا ہے ہم تربیت کو بھول چکے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے ہاللویا خدا تنبیہ کرتا ہے دیکھیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیے گا کہ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 24 آیت اس کے بعد دعا کریں گے ہاں جی یرمیہ کی ہم دیکھیں گے اس بات کو کہ خدا کا بندہ یرمیہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے 10 باب اور اس کی 24 آیت جی ہاں جی 24 آیت ہاں جی یہاں پر کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں آنے والی سزاؤں کے بارے میں خدا کا بندہ یہاں پر کتنی خوبصورت بات بیان کرتا ہے یہاں پر لکھا ہے اے خداوند مجھے تنبیہ کر ہاں جی کرے نال اندازے نال اپنے کہر نال نہیں غصے نال نہ چڑک نہیں مینوں اے خدا کڈی خوبصورت کڈا زبردست زبور گاندے بچ گئے تھے زبور گانڈیاں سن میں خداوند تیرا شکر ہے آج ویکھو اسی خدا دے کلام چھڈ کے اسی کتے ڈسکو بنے ہیں ہر پاسے یسو تیرے بن کتنا پیارا گانے ہونے سا سی چھوٹے چھوٹے ہونے سا جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے اسی لاہور جدو میں اتوں دی اپنے کراچی تو بشپ صاحب دی زوریچی سان سی پڑھنے سان تھے انہاں کول انہاں دی سرپرستی سام خدا دا خادم بڑے خوبصورت بیان کرتا ہوں سی ایک گل سیمول صاحب تے اسی انہاں نوں بابا جی کہنے ہونے سن بزرگ تے رہنے تسی بھی شاید جان دے ہو سیمول صاحب نوں اور بڑے اچھے ٹیچر سن انہیں کوئی گل کہنا کہ بیکو مناد بننا چے تے خدا دی تنبیہ نو اپنی زندگی چ لو تربیت خدا کو لو پاؤ میں ایک ٹیچر ہاں لیکن اچھا استاد بنن لئی اچھی سکھان واسطے خدا دی حضوری چ پہلا گھٹنیاں دے پالو خدا آپ کو سکھائے گا آپ دوسروں کو سکھائیں گے خدا آپ سے بات کرے گا آپ دوسروں کو بتائیں گے جب تک آپ نے پھر جب ہم یہاں پر بشپ ارزاد مارشل کے پاس یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تو یہاں پر بھی ہم نے بہت اچھی باتیں سیکھی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں کہ کیا لکھا ہے یہاں پر خدا کی بیٹی نے بڑی خوبصورت بات پڑھی ہے جی اے خداوند مجھے تنبیہ کر پر اندازہ سے اپنے قہر سے نہیں نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے گے کہ لکھا ہے ہاں
हाँ जी, कि वो यूं को खा गए, वो उसे निकल गए और चट कर गए, आगे उसके मस्तक को उजाड़ दिया। हाँ जी, जेड़े खुदा दी हजूरी ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, खुदा ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ है। बचा क्या है? क्योंकि उन्होंने याकूब को नहीं पहचाना। याकूब का खुदा, बाइबल मुकद्दस में कितनी खूबसूरत बात मिलती है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब का खुदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ याकूब ਦੇ खुदा ਦੀ इज्जत नहीं करोगे ਤੁਹਾਡੀ इज्जत किंज होएगी। इसलिए लिखा है कि ऐ खुदावन मेरी तंबी कर। आज हम इंसानों की तंबी से तंग है, लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि खुदावन मेरी तंबी कर, मेरी नसीहत कर, मेरी काट छाट कर। जब इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में कितनी खूबसूरत बात मिलती है, अगर तू अपने बेटे की तरबियत करे, अगर तू उन्हें छड़ी भी मारे तो मर नहीं जाएगा। सोटी भी मारते मर नहीं सकता, बल्कि और नसीहत कर, तरबियत कर। अरे जी ये लाडला पुत्र है, वो चंगिया गाला कढ़दा है, दिल कीता मां प्यो कोई नहीं तो पेटी चो अलमारी चो भी पैसे कढ़ के लै जांदा है। मैनू टच मोबाइल लिया के दे, उन्हें कहना गिरजे जाना, मैं पढ़ना ही नहीं है जिन्नी देर तक मैनू ऐ ना लिया के दिता, ऐ ना लिया के दिता। असी अपनी औलाद नू खुद तबाही ते बर्बादी अल जा रहे। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात मिलती है, लिखा है खुश नसीब है वो आदमी, खुश किस्मत है वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है। हालेलुया। आइए खुदा की तंबी को रद्द ना होने दे, बल्कि उसको अपने गले का तोक बनाकर रख लिए, जिस तरह यीशु ने इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रखा है। ओ मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा के बंदा मूसा ने अपनी जिंदगी में रखा है, जिस तरह खुदावन के बंदा यर्मिया ने अपनी जिंदगी के अंदर रखा है, खुदा की तंबी को अपने अंदर रख लिया। आइए हम खुदा की तरबियत को और खुदा की नसीहत को, खुदा के उस काट छाट को अपनी जिंदगी में ले जो खुदा पाक रूह के जरिए हमें सिखाना चाहता है। प्रेज हालेलुया, 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 तारीफ हो जीसस, प्रेज गॉड। यस यस, खुदावंद रब्बुल फाज का शुक्र करें, जोरदार ताली लगाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।